Okay, well, so we have started uh, Unit 3, the data structure available in Python, and we are done with the list and tuple thing. Okay, in that list and tuple thing, uh, we finished the accessing elements, how we can access the elements, how we can update the elements, deletion, उसके बाद what is the member functions और उसके related operations. So जैसे हम लोग ने लिस्ट और टपल में देखा, वैसे अभी हम लोग सेट्स और डिक्शनरी के बारे में देखने वाले हैं. सो इन द टुडेज लेक्चर वी आर फोकसिंग ऑन द सेट्स ओनली. ओके, सेट्स क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में. ठीक है. Okay, so see here, we are done with the list kind of thing and tuple, the second data structure in Python. Okay, so in that list and tuple, the same operation is performed. सेम ऑपरेशन मतलब उसका बिहेवियर डिफरेंट है, बट जो ऑपरेशंस थे वो सेम ही थे. और हम लोग ने डिफाइनिंग लिस्ट, यहाँ पे देखो एक्सेसिंग वैल्यूज सेम ही है. ओके, बेसिक लिस्ट ऑपरेशन यहाँ पे देखा, बेसिक टपल ऑपरेशन. सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेट्स. एक्सेस कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, बेसिक ऑपरेशन एंड सेट फंक्शन. Okay, so let's start with the Python sets. So mathematically a set is a collection of items not in any particular order. So set क्या होता है, एक particular order नहीं रहता है, but it is a collection of different items in descending order. We can say descending भी नहीं, in random order. Okay, and a Python set is similar to this mathematical definition with below additional conditions. और Python set भी एक ऐसी mathematical एक collection of group of elements है, but they have certain conditions. So first condition is the elements in the set cannot be duplicates. मतलब I cannot repeat the same element again and again in Python sets. जैसे मैंने list में किया था, tuple में किया था, here we cannot do such kind of things. ठीक है. सो अभी डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट में क्या डिफरेंस था, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस था, अभी लिस्ट, टपल और ये सेट में डिफरेंस क्या है. ठीक है. वी कैन नॉट replicate the same thing again and again, same element again and again in Python sets. Okay, then the second is the elements in the set are immutable. So same like tuple, we cannot change the elements here. Okay, cannot be modified, but the set as a whole is mutable, but we can change the entire set. हम लोग individual element नहीं change कर सकते, but we can change the entire set. पूरा clear करके हम लोग वो change कर सकते. Unlike tuple, we cannot change the elements inside the tuple body. Either we cannot means neither we can change the elements and nor we can change the entire tuple as well. So unlike tuple, here we can change the entire sets if we want to do these changes. So the elements in the sets are immutable, but the entire whole is mutable. Okay, and the third is there is no index attached to any element in Python set. मतलब इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पे. सपोज यहाँ पे देखो, कभी ये सेट मैंने बनाया है, so ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है. लाइक लिस्ट एंड पाइथन में दिखा था, इंडेक्सिंग था 0 to n-1. So here is no any indexing kind of thing. So they do not support any indexing or slicing operation. So हम लोग slicing भी नहीं कर सकते, मतलब इंडिविजुअल एक एलिमेंट को टारगेट करना है. So we cannot do in sets, in Python sets, this thing. Okay, set operations, अभी उसके operations. The sets in Python are typically used for mathematical operations like union, intersection, difference or complement, etc. We can create a set, access its element, can and carry out these mathematical operations as shown. So हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो यूनियन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यूनियन मतलब दोनों दो सेट्स में जो है वो उसे हम लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन कॉम्प्लीमेंट दोज एलिमेंट्स अवेलेबल इन इंडिविजुअल सेट्स. ओके, सो ऐसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट वन सेट. सो हाउ वी कैन क्रिएट द सेट. बहुत ही सिंपल है. पाइथन इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, और इसीलिए वो पॉपुलर भी है. अनलाइक C++, जावा, उसमें बहुत सारे मतलब सेमी कोलन का टेंशन रहता है. वो बॉडी मतलब बहुत सारे, अगर एक मुझे कुछ सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट रहते हैं. हियर इन द पाइथन ऑल द थिंग्स आर मेकिंग सिंपल बाय द कंपाइलर सेट. जिसने डिज़ाइन किया बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया. आप लोग को भी पता चल गया होगा कि कितना ईजी है. ठीक है. सो अ सेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द सेट फंक्शन. सो इफ यू वांट टू create one set using, you have to write the set function.
So same like tuple, we can use the round bracket here, parenthesis, and unlike list we cannot do the स्क्वायर ब्रैकेट थी, बट यहाँ पे देखो ऑल द एलिमेंट्स विद इन अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, ओके। और यहाँ पे क्या है, हम लोग पैरेंथेसिस में सेट डिक्लेयर करने वाले हैं, ओके। बट जो एलिमेंट्स है उसके लिए फिर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, एंड इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट आई कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स एंड विच आर सेपरेटेड बाय करली ब्रेसेस, ओके। सो डबल कोट से मैं वो उसे सेपरेट करने वाला हूँ। सो लिस्ट में हम लोग ने क्या किया था, लिस्ट में सिर्फ ये क्या यूज किया था हम लोग ने, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, और पाइथन सॉरी टपल में सिर्फ ये राउंड ब्रैकेट यूज किया था। बट इन द creation of set we can use both the parenthesis and square bracket, and inside this brackets we can write the elements in double quotes and separate those element by using comma, okay। और उसके बाद months लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। months इज इक्वल टू ये देखो, ये ऐसे लिखा है, और डेट्स ऐसे लिखा है, तो ये पूरा एक एंटायर सेट हो गया क्रिएट, ठीक है। और क्या हम लोग ने क्या बोला था, ऑल द एलिमेंट्स विद इन अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, सो विद इन अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस हम लोग ने ये एलिमेंट लिखे, ठीक है, ओके। व्हेन द अबव कोड इज एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे देखो मैंने क्या प्रिंट किया है, डेज प्रिंट की है, मंथ्स प्रिंट की है, और डेट्स प्रिंट की है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रिजल्ट उसका आ रहा है, जैसे मैंने डेज प्रिंट किए, सो वो डेट्स मिल रहे हैं मुझे सेट के तौर पे, मंडे टू सैटरडे। जैसे मैंने मंथ्स प्रिंट किया, सो मुझे मंथ मिल रहे हैं, और जैसे मैंने ये डेट्स प्रिंट किया, सो डेट्स भी मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यूज इनसाइड द सेट, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है, तो फिर हम लोग एक्सेस कैसे करें, ठीक है। सो वी कैन नॉट एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ सेट, मतलब एक इंडिविजुअल वैल्यूज को टारगेट नहीं कर सकते हम लोग सेट में, जैसे हम लोग ने लिस्ट और टपल में किया था, ओके। वी कैन ओनली एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर एज शोन बिलो। अगर आप लोग को एक्सेस करना है तो आप लोग को पूरा एंटायर सेट ही एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट मतलब क्या, जितने सेट में मल्टीपल एलिमेंट्स है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप लोग शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, शॉपिंग के लिए आपको बिस्किट चाहिए। सो बिस्किट अगर आप लोग मॉल में गए, ठीक है, सो मॉल में आप लोग को एक इंडिविजुअल बिस्किट का जो बंच रहेगा वो नहीं मिलने वाला, ठीक है, आपको पूरा सेट ही लेना होगा। मॉल में गए तो आप लोग नॉर्मल किराना माल की दुकान पे गए तो आप लोग को मिल सकता है, हाँ, बट इफ़ यू विजिट द मॉल, सो यू हैव टू परचेस द एंटायर सेट। सो सेट मतलब क्या, वो उसके अंदर बहुत सारे फिर बिस्किट्स के बंचेस है, हाँ, जो इन नंबर ऑफ बंचेस मिला के एक सेट जनरेट हो रहा है, और वो आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। सेम लाइक सेट में क्या है, यू कैन नॉट एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यू, इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू यू कैन चूज द एंटायर सेट, ओके। और फॉर लूप यूज करके, मतलब फॉर डी एक वेरिएबल बनाया मैंने टू एक्सेस दिस डेज सेट, टू एक्सेस दिस सेट नेम्ड एज डेज, इन डेज करके मैंने प्रिंट कर दिया, तो जितने भी है वो सारे एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाँ, सारे के सारे वैल्यूज एक्सेस हो रहे इन रैंडम सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बोला था, हाँ, कलेक्शन ऑफ आइटम्स नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, हम लोग ने पहले ही बोला था, इसीलिए वो देखो आउटपुट में मंडे ट्यूसडे ऐसे नहीं मिल रहे, रैंडम ऑर्डर में मुझे सेट वो मिल रहे, ठीक है, ओके। नाउ इफ यू वांट टू ऐड आइटम्स इनटू सेट, सो यूजिंग डॉट ऐड मेथड यू कैन ऐड द, मतलब यूजिंग ऐड मेथड यू कैन ऐड any item in your individual set, okay, yeah, and dot operator is used to fetch this addition या फिर add method, okay। so days नाम का है, और यहाँ पे मुझे संडे ऐड करना है, so you simply write the days, means the name of set, dot operator, and using add method you can pass the value as sunday sun मैंने पास की है, और days जैसे प्रिंट करूंगा मैं, so यहाँ पे देखो संडे, यहाँ पे देखो आ रहा है, और ये रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है क्योंकि उसका डेफिनेशन ही वैसे, okay। Then deletion means if you want to remove item from set, so you can use the discard, जैसे हम लोग ने del यूज किया था टपल और लिस्ट में, similarly we use here discard for deleting item, so dot operator यूज करके हम लोग टारगेट करेंगे जो डिलीट करना है। यहाँ पे संडे किया है मुझे, ओके, इन लोग का थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे संडे है ही नहीं तो डिलीट कैसे करूंगा, सैटरडे अगर मुझे डिलीट करना है, ओके, तो सैटरडे में लिखूंगा यहाँ पे और मैं रिमूव कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखो अभी हम लोग ये फंक्शंस देखने वाले हैं,
जो यूनियन इंटरसेक्शन बोले थे ना, ये उसके ऑपरेशंस हो गए, बेसिक ऑपरेशंस। क्योंकि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हम लोग ने, एक्सेसिंग वैल्यूज देख लिया, डिलीटिंग देख लिया, अपडेशन देख लिया, ठीक है, सेट के बारे में, बेसिक सेट ऑपरेशंस भी देख लिया जो अभी हम लोग ने देखे अभी, सेट फंक्शंस, बिल्ट इन सेट फंक्शंस। Okay, so the first function is union of sets. Okay, the union operation on two set produces a new set containing all the distinct elements. So obviously you want to perform, if you want to perform the union on the sets, so you need two different sets, okay, two individual sets. So वो क्या करने वाला है, प्रोड्यूसेस अ न्यू सेट, वो दो सेट से वो एक नया सेट प्रोड्यूस करेगा विच कंटेन्स ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ द सेट्स। मतलब ये दो सेट में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, सो वो ये देखो यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, सो वेडनेसडे की सिर्फ एक ही कॉपी जनरेट करेगा न्यू जो मेरा यूनियन सेट है उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो मंडे तो एक ही बार है, ट्यूसडे एक ही बार है, वेडनेसडे यहाँ पे देखो वेडनेसडे एक ही बार प्रिंट हो रहा है, फ्राइडे तो एक ही बार है, मतलब वेडनेसडे की दो कॉपी है फिर भी वो एक ही बार प्रिंट हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट अवर यूनियन। हम लोग ने यूनियन पढ़ा था आई गेस डिजिटल टेक्निक्स में, ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। सो क्या किया हम लोग ने, दो सेट्स बनाए, डेज ए नाम का एक सेट, डेज बी नाम का एक सेट, जो नॉर्मल अपना सिंटैक्स है वो फॉलो करके, ओके। उसके बाद ऑल डेज नाम का एक मैंने दूसरा सेट बनाया और यहाँ पे मैं यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। टू डू दैट आई एम सिंपली राइट द डेज ए, और यूनियन के लिए मैं डैश यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो डैश से क्या होगा, दोनों भी यूनियन में जितने भी इंस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है, वैसे एलिमेंट्स इकट्ठा होकर फिर मैं वो ऑल डेज प्रिंट कर रहा हूँ। क्लियर? okay, now the second function is intersection. So the intersection operation on two sets produces a new set containing only one common element. So इससे क्या होने वाला है, it produces a new set, obviously जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया वैसे ही न्यू सेट प्रोड्यूस होने वाला है, which contains only the common elements. So unlike यूनियन, यहाँ पे क्या था, जो कॉमन एलिमेंट था उसे निगलेक्ट करके सिर्फ एक ही प्रिंट किया, अभी यहाँ पे क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही प्रिंट होने वाला है। सो यहाँ पे देखो सेम सेट मैंने डेज ए और डेज बी ऊपर से उठाया है, मतलब वही सेट से दोनों भी, और इंटरसेक्शन किया है यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे तो नोट लिख लो कि यूनियन करने के लिए हम लोग डैश लिखेंगे बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स, एंड इफ यू वांट टू इंटरसेक्ट दो सेट्स so then you can write this ampersand operator, ठीक है, एंड करेंगे, सो जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन फैक्टर मुझे मिल जाएगा, ओके। then the next is difference of sets. Okay, so the difference operation on two sets produces a new set containing only the elements from the first set and none of from the second set, okay. so यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस मतलब ये सेट ए, मतलब सॉरी डेज ए और माइनस डेज बी, ओके, डिफरेंस में फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो इससे क्या होगा, डेज ए में जितने हैं वही सिर्फ दिखने वाले हैं और माइनस हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे कॉमन है सो वेडनेसडे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्यूसडे भी रहता तो ट्यूसडे माइनस हो जाता और सिर्फ मंडे प्रिंट होता, बट हियर वेडनेसडे इज द कॉमन फैक्टर, सो इट विल निगलेक्ट दैट थिंग, इट विल माइनस डिफरेंस दैट थिंग एंड प्रिंट द ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम डेज ए। अगर मैं सेट मतलब डेज बी माइनस डेज ए करता तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रिंट होता। क्लियर? Okay, and the last topic is compare sets. So we can check if a given set is subset or superset of another set. Okay, subset और superset है कि नहीं हम लोग चेक कर सकते हैं, और वो बूलियन वैल्यूज प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसेट के लिए देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू डेज लिखा है, मतलब ये छोटा है कि नहीं, हाँ लेस देन है या फिर इक्वल टू है कि नहीं। सो ऑब्वियसली ये छोटा है, इसमें 3 ही एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ओके। सो वो ट्रू आ रहा है, हाँ। और सुपर सेट में देखो डेज बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर है। अगर मैं ये लेस देन इक्वल टू करता, सुपर सेट करता, तो ये फॉल्स आ जाता यहाँ पे। क्लियर? बहुत ही बेसिक, एकदम स्कूल लेवल का ये एग्जांपल है, पाइथन इतना इजी लैंग्वेज है, ठीक है। सो यू गॉट द आइडियाज, और ये प्रिंट किया है मैंने, दैट्स इट। सो ओके, हम लोग ने बहुत ही इजी टॉपिक कवर किए अब तक, और वैसे सारे ही टॉपिक पाइथन में इजी है। सो हम लोग वी आर डन विद द सेट्स, लिस्ट लिस्ट टपल्स एंड सेट्स, ओके। सो नाउ द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज डिक्शनरीज, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, एंड उसके बाद फिर चैप्टर 4 चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।